ભાઈ અમે આટલા વર્ષથી વોટ આલીએ છીએ, નહીં હાલતા હોય તો વાત અલગ, અમારા હિસાબે તમે આગળ આવો છો અને હવે તમે આવું ના કરો અમારા જોડે. અમને મજૂરી કરીને કહો અમને કોઈક ઘરની જગ્યા ઘર હાલો સાહેબ, અમારે હોવાની વ્યવસ્થા કરો અમારી. અમે રોડનું અમે હાલી હવે આ તમારો વોટ આવે છે, અમે તમને હાલો પણ અમને ઘરની જગ્યા ઘર હાલો સાહેબ, આપને કોઈ આ વિનંતી કરું તમારી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના વોટર ચાલે છે ને, અમે જનતા પાર્ટીના ચાલે છે ને, અમે સરકારને અમે આગળ લાવીએ, નહીં લાવીએ અમને અમે આગળ લાવીએ છીએ અમે, પણ અમારું ઘરની જગ્યા ઘર હાલો અને અમારો રોવાનો બંધ કરાવો, અમને આંસુ કાઢો સાહેબ. બધું વીર વિખેર અમારો ટેકરો વર્ષોથી અમે અહીં રહેતા હતા, અમે જોડે બધા નાના મોટા થયા, અમારો ટેકરો વીર વિખેર થઈ ગયો. હાવ કોઈ સવાર વહેલા આવીને ઊભા રહ્યા, અમને ટાઈમ 7 તારીખનો આલ્યો ને તાત્કાલિક આ રીતે ના આવવું જોઈએ. અમારે બધી રીતે બંદોબસ્ત કઈ રીતે, મારે તો કોઈ નથી આગળ પાછળ, હું તો એકલી છું, હું ક્યાં જઈશ. पानी पानी दो इनको, आप रोइएगा मत. कई परिवार ऐसे हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो अकेली है, जिनके हस्बैंड इनके पति उनको छोड़कर चले गए हैं, कोई सहारा नहीं है. ये एक रामवाड़ी टेकरा इनका सहारा था, रामवाड़ी टेकरा इनका परिवार था, इनकी फैमिली थी, सब एकजुट होकर रहते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे. और आज कहीं ना कहीं सरकार के वो बुलडोजर ने इनके सहारे पर, उनकी आत्मविश्वास पर जो है बुलडोजर फेर दिया है और सड़कों पर लाकर इन्हें खड़ा कर दिया है. आप देख सकते हैं लोग कंधों पर सिलेंडर उठाकर जा रहे हैं, अपना सामान जितना बच रहा है इतने सामान को बचाया जा रहा है. पीछे भी मैं कहूँगा कैमरामैन से, ये देखिए किस तरह से लोग जो है अपने सामान को बचाकर निकाल रहे हैं, ताकि कम से कम नुकसान हो, और जो बचा कुचा सामान है उसको ये अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस बचे कुचे सामान को ही बेचकर अपना जो है सड़कों पर घर गुजरान जो है चलता है चलाएंगे. तो दुखनीय ये घटना है, और हर बार जब डिमोलेशन होता है तो तस्वीरें इस तरह की ही सामने आती है, और सरकार जो है आँख आड़ा कान करती है, गरीब परिवार सड़कों पर इसी तरह से रोता है. बस्ती बैठी है. ધનગીરી કમાણી નાખીને બધું કાઢ્યું. આ તો ફૂટી પેટ બેઠા છીએ, શું કરવી? કેટલા વર્ષથી રહેતા હતા? અમે 45 વર્ષથી રહેતા હતા. શું કરીએ, આ બેઠા. બે માળનું મકાન હતું, બધી કમાણી લોન લીધી, વ્યાજ ભરીને મકાન બનાવ્યું, પાવર કરી શું કર્યું? અમે મુસલમાન થોડા છીએ સાહેબ, અમે હિન્દુ છે. હિન્દુ આટલી પબ્લિકને અમારે કેવી રીતે તમે આવું કરો છો સાહેબ? ના કરો અમને. चलिए अब आपकी जो है राजनीति पर भी जो है बात हो रही है. ये बहन कह रहे हैं, ये सीनियर सिटीजन महिला कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं है, तो आप हमें इतना मतलब मुसलमानों को परेशान करते हैं. અમને પરેશાન કરે છે, બહુ કરે છે. અમે ક્યાં જાય? અમારે કઈ જગ્યા રહેવાનું અમને? અને અમને હરણ ના કરો સાહેબ, અમને હાલો. અમે મુસલમાન નથી, અમે હિન્દુ ધર્મ છે. અમે તમે દયા કરે. मुसलमान का तोड़ देते हैं ना. મુસલમાન કા તો રોડ પર અમારું નહીં તોડો, ગરીબનું નાખે તોડો સાહેબ, નાખે રોડાવો અમને. અને અમને બાંગ્લાદેશી નથી સાહેબ, અમે એવી રીતે ના કરો સાહેબ. અને શું કરું છું હું સાહેબ? ક્યાં છું? અમારા ઘરવાળા મરી ગયા સાહેબ, કોઈ નહીં અમારું કોઈ. चलिए हम कई सालों से कहते थे ये नफरत के बीज बोए हैं आपने, जो नफरत यहाँ पर दिख रही है. सीनियर सिटीजन महिला है जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है इस अहमदाबाद शहर में, और कहीं ऐसा सामना हुआ होगा, मुस्लिम हिंदू परिवार साथ रहते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये कहना पड़ रहा है, ये आप लोगों ने ही बुलवाया है कि हम मुसलमान नहीं, हमारे मकान मत तोड़िएगा. मतलब कि पॉलिटिकल राजनीतिक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी हो, आपस में लड़ाते हैं और नफरत यहाँ पर छोड़ जाते हैं, और उस नफरत का एक मुजाहरा आपके सामने किया गया. तो थी रही है कि झूपड़पट्टी वाला सारा नहीं लगता. आमनी અમારા છોકરા બેસતા હતા, પણ કોઈ દિવસ કોઈને કઈ ગારો ના બોલો, બધા વ્યવસ્થિત રીતે બેસતા હતા. એ મેલના સામે ઝૂંપડપટ્ટી સારી ના લાગી. જટ ઝૂંપડપટ્ટી વાળાને કાઢો, ઝૂંપડપટ્ટી વાળાને કાઢો, ઝૂંપડપટ્ટી વાળાને કાઢીને તું મેલમાં સુખીથી રહીશ. તું ક્યાંય સુખી નહીં રહે. તું હા અમારા નેહાકા લઈશ તો તું ક્યાંય સુખી નહીં રહે.
અમારો જીવ બાળ્યો છે ને અમારા નેહાકા લીધા છે અમે ફૂટપાથ ઉપર આવી ગયા 6 વાગ્યાનો પેલો આવી ગયો છે અમે નથી કશું ખાધું પીધું અમે બધા અહીંયા બેઠા છીએ અમે તો અહીંયા નેહાકા નાખીને જઈએ છે રોઈ કકડીને પણ તારા ઘરમાં રો કકડ ના થાય તો તું જોઈ લેજે ચાલ आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में डिमोलिशन आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक चर्चा का विषय रहा ये शहरवासियों के लिए। कहीं दिनों के ब्रेक के बाद और कहीं महीनों के ब्रेक के बाद अहमदाबाद की ये रामवाड़ी टेकरा है इसनपुर का, और मेरे ठीक पीछे जो जनता बैठी है, जो आवाम बैठी है, जिनके मकान हैं, जो कोई 40 साल 45 साल और 50 साल से इस रामवाड़ी इलाके में बसते थे, इनकी 2 पीढ़ियों का जीवन यहीं गुजरा है और आज कहीं ना कहीं इनके मकान ऊपर बुलडोजर फेर दिया गया है। ठंडी के तापमान की अगर बात की जाए तो रात भर ठंड का जो है तापमान हाई रहता है और ऐसे समय पर ये मासूम बच्चे आप देख सकते हैं कि ये सड़कों पर कैसे रहेंगे। इनकी मांग ये है कि इनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए, इन्हें कोई मकान देना चाहिए, उसके बाद तो ये डिमोलिशन करते। सीधा हम एक एक करके विस्तार के लोगों से और ये अपने सामान के साथ रस्तों में हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या दुख है। माँ जी, कितने सालों से आप रहते थे और क्यों आँख में आंसू है पानी का? हमें 40 साल से रहता साहेब, हमने रोड पर लाई दीधा से बोलो અમે રહીએ છે ગાડી આજ હવાનું ખાધું પણ નહીં, મને તો બીમાર છું તો વચ્ચે જ મને એક્સિડન્ટ ઓપરેશન કરાયેલું છે તો અમે ડર ચક્કર આમથી આયા मान 2 જણ ઉચકી લાયા ઘરે પાડી દીધું, કશું લેવાય નહીં દીધું। અમે શું કરીએ હવે, ક્યાં જઈએ અમે? અમને મકાન આલો। હા બોલો, ઘરમાંથી બહાર વસ્તુ કાઢવા દીધી નથી અને એકદમ પાડવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું, બધી બાજુ પોલીસ ગોઠવી દીધી। હવે અમારે બહાર કેમનું નહીં કરવાનું? હેરાન કરી નાખ્યા બધાને અમને। અરે સવારે 8 વાગે તો મૂકી દીધું, બધું પોંટવાનું બધું તોડવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું બધું। 7-8 વાગ્યાનું ચાલુ થયું। અમને ઘરના આટે ઘર આપો, અમે અહીંયા 12 ફૂટ પાવડી ઉપર બેઠા છીએ, ક્યાં જઈએ? નાના નાના છોકરા લઈને ठंडी में ठरिए नहीं रातना, क्या जवानू हमारे? पहला घर आपो ने પછી તમારે તોડવું હતું, पहला तोड़્યું શું લેવા? ये किस नाम से टूट रहा है? विकास के नाम से तोड़ रहे हैं? क्या है? तलावड़ी कुछ है, उसको डेवलप करना था, यही है ना? हाँ हाँ, ये तળાવના હિસાબે સુધારવા માટે। चलिए, एक तरफ जो है चंडोला तालाब को डेवलप करने के लिए काफ़ी जो है हज़ारों मकान को तोड़ा गया और अब जो है इसनपुर टेकरा, यहाँ भी एक पीछे तलावड़ी है और उसके आसपास ये लोग बसते हैं। सरकार का मानना है कि इसको भी जो है अब उसको तोड़कर विकास किया जाएगा और उस तालाब को जो है लोगों के लिए खुला किया जाएगा बना करके। क्या कहोगे? कितने क्या बोले हम सरकार के? हमारा घर टूट गया, आज हम लोग बेघर हो गए, रोड पे आके खड़े हो गए। मेरी बच्ची का पूरा भविष्य दाव पे लगाए, कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ से क्या करूं, कहाँ पे रहेंगे हम लोग? कुछ सुविधा तो हम लोग को दी जाए तो हम तो हमारा घर खाली करने के लिए तैयार थे, पर हमको सुविधा तो दी जाए ना, घर के सामने घर तो दिया जाए ना। कहाँ कैसे भाड़ा भरे के लोग भाड़े पे मकान देने के लिए भी हम लोग को तैयार नहीं है। 10-10 हज़ार भाड़ा है लोगों के घर पे, हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे भाड़ा भरेंगे हम लोग? क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कुछ नहीं करते, मेरे हस्बैंड तो है नहीं। अच्छा, आप अकेले? मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के चले गए, मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची में पूरा जीवन है, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँगी? कितने साल से रहते हैं? मैं कम से कम मेरा जन्म ही जी आपका है। तो आपने अब ये सब लोग जो बैठे हैं, वोट तो आपने दिए हैं सबका साथ सबका विकास, अब विकास हो रहा है तो कैसे इसको देखते हैं? क्या करें, किस बारे में हम लोग कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोले, क्योंकि परिस्थिति ऐसे चल रही है, कहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे जवाब दें? सुबह में 7 तारीख का बोला था, सुबह में 6 बजे आ गए, अभी चाय भी नहीं पिया, भूखा तरसिया रोड पे खड़े बैठ गए, क्या करें? हमारे को मकान के सामने मकान ही चाहिए बस। मेरा लड़का यहाँ पे पढ़ता है, अब वो स्कूल कैसे जाएगा? दिवाली के बाद स्कूल ही नहीं जा सका वो। मेरी टीचर है, वो मेरे को बार बार बोलती है कि स्कूल आओ, तो मैंने कहा कि टीचर वो है ना, हमारा घर टूट रहा है, तो वो मान नहीं रहे और ऐसा बोल रहे हैं अगर ज़्यादा छुट्टी रखोगे तो हमारा वो परीक्षा टेस्ट आता है वो हमको नहीं देने देंगे। तो मेरे को सरकार से इतनी विनती है कि हमें घर के सामने घर दे और स्कूल में जाना है और पढ़ेंगे, फिर हम नए घर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। जब डिमोलेशन होता है तो इनका एजुकेशन ख़राब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तमाम के सामान के साथ ये लोग जो है सड़कों पर हैं और इनके पास ये कोई जवाब नहीं है कि इनको अभी रात का जब समय होगा, अंधेरा होगा और यहाँ ठंड के बीच इनको सोने की व्यवस्था कहाँ से मिलेगी,
ना कोई स्कूलों का अब तक जो है सामने कोई बात आई है कि कोई सरकारी स्कूल में इनको रखा जाएगा या कोई ऐसी व्यवस्था दी जाएगी ताकि ठंड में इनके बच्चों को जो है लेकर ये लोग अपनी सलामती के साथ सो सकते हैं। फ़िलहाल रामवाड़ी इलाका है ये इसनपुर का। पिछले दिनों जो है काफ़ी सारी चैनलों के माध्यम से, हमारी चैनल के माध्यम से भी ये खबरों को चलाया गया था कि यहाँ एक बड़ा मेगा डिमोलेशन होने वाला है और आज कहीं ना कहीं वो घड़ी आई, वो दिन आया कि इनका मेगा डिमोलेशन की शुरुआत हुई और 900 मकान को तोड़ा गया और आज परिवार सड़कों पर आंसू लेकर जो है यहाँ पर बैठे हैं। कॉमनवेल्थ के नाम पर, विकास के नाम पर अहमदाबाद में कहीं ऐसी जगहों पर डिमोलेशन हो रहा है, लेकिन ये गरीब जनता कह रही है, पुकार रही है कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहाँ गरीबों को खदेड़ा जाए, उनको सड़कों पर लाया जाए और फिर इस देश का और इस राज्य का, शहर का विकास करो आप। ऐसा विकास इन्हें मंजूर नहीं है। कई महिलाओं ने ये कहा, हम कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को जिता कर आते हैं, इन्हें वोट देते हैं, क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिए थे कि आज सड़कों पर बैठकर इन्हें रोना पड़े। अब सरकार को ये देखना होगा इनको वैकल्पिक व्यवस्था देती है या फिर इसी तरह से ये अपनी आंसुओं को लेकर दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ભાઈ અમે આટલા વર્ષથી વોટ આલીએ જે નહીં હાલતા હોય તો વાત અલગ, અમારા હિસાબે તમે આગળ આવો છો અને હવે તમે આવું ના કરો અમારા જોડે। અમને મજૂરી કરીને કહો, અમને કોઈક ઘરની જગ્યા ઘર હાલો સાહેબ, અમારે હોવાની વ્યવસ્થા કરો અમારી। અમે રોડનું અમે હાલી આવ્યા, તમારો વોટ આવે છે, અમે તમને હાલો પણ અમને ઘરની જગ્યા ઘર હાલો સાહેબ, આપને કોઈ આ વિનંતી કરું તમારી। ભારતીય જનતા પાર્ટીના વોટર વોટ ચાલે છે ને, અમે જનતા પાર્ટીના ચાલે છે ને, અમે સરકારને અમે આગળ લાવીએ, નહીં લાવીએ અમને, અમે આગળ લાવીએ છીએ અમે, પણ અમારું ઘરની જગ્યા ઘર હાલો અને અમારો રોવાનો બંધ કરાવો, અમને આંસુ કાઢો સાહેબ। બધું વીર અમારો ટેકરો વર્ષોથી અમે અહીં રહેતા હતા, અમે જોડે બધા નાના મોટા થયા, અમારો ટેકરો વીર થઈ ગયો। હાવ કોઈ સવાર વહેલા આવીને ઊભા રહે, અમને ટાઈમ 7 તારીખનો આલ્યો ને તાત્કાલિક આ રીતે ના આવવું જોઈએ। અમારે બધી રીતે બંદોબસ્ત કઈ રીતે, મારે તો કોઈ નથી આગળ પાછળ, હું તો એકલી છું, હું ક્યાં જઈશ। पानी दो इनको, आप रोइएगा मत। कई परिवार ऐसे हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो अकेली है, जिनके हस्बैंड, इनके पति उनको छोड़कर चले गए हैं, कोई सहारा नहीं है। ये एक रामवाड़ी टेकरा इनका सहारा था, रामवाड़ी टेकरा इनका परिवार था, इनकी फैमिली थी, सब एकजुट होकर रहते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे और आज कहीं ना कहीं सरकार के वो बुलडोजर ने इनके सहारे पर, उनकी आत्मविश्वास पर जो है बुलडोजर फेर दिया है और सड़कों पर लाकर इन्हें खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं लोग कंधों पर सिलेंडर उठाकर जा रहे हैं, अपना सामान जितना बच रहा है इतने सामान को बचाया जा रहा है। पीछे भी मैं कहूँगा कैमरामैन से, देखिए किस तरह से लोग जो है अपने सामान को बचाकर निकाल रहे हैं ताकि कम से कम नुकसान हो और जो बचा कुचा सामान है उसको ये अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस बचे कुचे सामान को ही बेचकर अपना जो है सड़कों पर घर गुजरान जो है चलता है वो चलाएंगे। तो दुखनीय ये घटना है और हर बार जब डिमोलेशन होता है तो तस्वीरें इस तरह की ही सामने आती है और सरकार जो है आँख आड़ा कान करती है, गरीब परिवार सड़कों पर इसी तरह से रोता है। जी હિન્દુ એ અમે મુસલમાન થોડા છીએ સાહેબ, અમે હિન્દુ છે, હિન્દુ આટલી પબ્લિકને અમારે કેવી રીતે તમે આવું કરો છો સાહેબ, ના કરો અમને। चलिए अब आपकी जो है राजनीति पर भी जो है बात हो रही है। ये बहन कह रहे हैं, ये सीनियर सिटीजन महिला कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं है तो आप हमें इतना मतलब मुसलमानों को परेशान करते हैं। અમને પરેશાન કરે છે, બહુ કરે છે, અમે ક્યાં જાય, અમારે કઈ જગ્યા રહેવાનું અમને, અને અમને હરણ ના કરો સાહેબ, અમને હાલો, અમે મુસલમાન નથી, અમે હિન્દુ ધર્મ છે, અમે તમને દયા કરે। मुसलमान का तोड़ देते हैं ना, મુસલમાન કા તો રોડ પર અમારું નહીં તોડો, ગરીબનું નકે તોડો સાહેબ, નકે રોવડાવો અમને, અને અમારે બાંગ્લાદેશી નથી સાહેબ, અમે એવી રીતે ના કરો સાહેબ, અને શું કરું છું હું સાહેબ, ક્યાં છું, અમારા ઘરવાળા મરી ગયા સાહેબ, કોઈ નહીં અમારું કોઈ। चलिए हम कई सालों से कहते थे, ये नफरत के बीज बोए हैं आपने, जो नफरत यहाँ पर दिख रही है, सीनियर सिटीजन महिला है जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है इस अहमदाबाद शहर में और कहीं ऐसा सामना हुआ होगा, मुस्लिम हिंदू परिवार साथ रहते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ने ये कहना पड़ रहा है, ये आप लोगों ने ही बुलवाया है कि हम मुसलमान नहीं, हमारे मकान मत तोड़िएगा। मतलब कि पॉलिटिकल, राजनीतिक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी हो, आपस में लड़ाते हैं और नफरत यहाँ पर छोड़ जाते हैं और उस नफरत का एक मुजाहरा आपके सामने किया गया। कि हमें बांग्लादेशी तो छे नहीं कि यहाँ तो सब हिंदू छे, तो ही तोड़ी ना क्यों, कहाँ जाइए साहब, हमें तो विधवा छे, कहाँ जाइए, तो कहाँ जाइए साहब। अभी ये सरकार की तानाशाही है, अभी वोट लिया, पावर पब्लिक ने दिया, लेकिन अभी ये पब्लिक को, कोई गरीब पब्लिक है, गरीब की कोई कुछ गिनता नहीं, सुनता नहीं, बराबर।
और इधर अभी देखिए सरकार बोले कि भाई स्कॉलरशिप देते ये देते। मेरे खुद का लड़का है, वो 12वीं की एग्ज़ाम है अभी दूसरे महीने में, तो अभी उसके मगज पे मानसिक असर पड़ेगा। वो पढ़ाई करेंगे, अभी 10-10 हज़ार भाड़ा है, और जहाँ भी भाड़े पे मकान लेने जावे भी तो भी अपने बोलते हैं कौन सी नात के हो, फलाना है ढिकना है। और जो भी ये है अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है सभी जाति हटाओ, हिंदू एकता रखो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। भाई ये फलाना ढिकना सब कहते हैं भाई ये है बांग्लादेशी पाकिस्तानी 5 करोड़ है, ये फलानी। तो वो कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं? वो लेके आते हैं उधर से। हम तो भारत के नागरिक है। ये जो विकास के नाम पर हो रहा है, कॉमनवेल्थ के नाम पर ही तो बोल रहे हैं। हाँ, विकास के नाम पर कर रहे हैं। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम के नाम पे ये सब कुछ कर रहे हैं। जिसके ये लोग है 5 लाख 10 लाख एनओसी दे देते हैं। सब गौचर जमीनी है, ईसनपुर में नॉन स्टॉप गौचर है, लेकिन वो पैसे वाले। ये गरीब लोग प्रजा है, टक्की लेके टक्की खाते, एक टाइम खाने का भी पापा है। अभी इधर है रोजगारी बंगले पे ये बहन हो जाती है, वो वहाँ उसका पेट भरने के लिए बासन घींच के भर लेती है। अभी दूसरी जगह पे फेंक देंगे कचरे जगह पे, जहाँ कौन क्या रोजगारी नहीं मिलेंगी, भूखे मरेंगे। तो ये कोई मानव नहीं गिनते हैं, ये पब्लिक गरीब को कोई ये कीड़ी मकोड़ा ही समझते हैं, समझे। अभी ये तानाशाही है। अभी ये क्या है कि भाई ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। उद्योगपति है, सब दान करते राम मंदिर में 500 करोड़ 100 करोड़ हज़ारों करोड़। ये उद्योगपति मंदिरों पे दान करते करोड़ों अजबों रुपये का। अभी ये हज़ारों जीव को दुखी करके अगर तुम मार दो ना, कुछ नहीं करना हो तो मार दो, तुमको मारना ही है। गोली चला दो, बुलडोजर चला दो, ऐसे तड़प तड़प के पब्लिक मरेंगे। कोई दया नहीं है, भावना नहीं तुम्हारे में, हाँ, मानवता नहीं है। अबे ये पब्लिक, अभी मेरा छोकरा पढ़ाई करता है, ये सब क्या करेंगे? सब रोजगारी नहीं मिलेंगे, चोरी करेंगे, लूटपाट बनेंगे। तुम गलत ही रास्ते पे तुम्हारी इच्छा है। हाँ, आवाम को तुम कोई आसरा नहीं देते, दूसरी जगह पे भाड़ा भी देते हैं। कोई नेता मिलने नहीं आया आपको जो यहाँ जिनको वोट दे रहे हैं आप? वो वोट लेना था, 2 हाथ जोड़ के हमको बोलता है हमको वोट दो, हम तुमको ये सुविधा देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे। टैक्स बिल, इधर टैक्स बिल भी हम भरते थे, लाइट बिल भी भरते थे, सब टोटल ही भरते थे। अभी गैर कायदे। और मोदी साहब ने बोला 12,000 का संडास भी बना दिया बहनों को। अभी बहनों दिकरियों, मोदी साहब सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये बहन दिकरी कहाँ सोच जाएंगी, क्या करेंगी? अभी उसको रहने का घर नहीं हो, भाड़ा भी नहीं भर सकते। भाड़ा भरे तो भी जात पूछते हैं, कौन सी जात के, फलानी जात के, ढिकने जात के। चेहरा देख के भाड़े पे भी मकान भी देते हैं। कोई सक्षम है उसको भाड़े मकान भी नहीं मिलता कि नीची जात का होएगा। और तुम बोलते हो अभी कि भाई ये हिंदू फलाना ढिकना, ये सब कहने की बात है। कोई मानवता जैसी चीज़ नहीं है, टोटली भ्रष्टाचार है। चलिए, एक जो है दुख ये भी इन्हें सता रहा है कि गुजरात में आसान धारा का एक कानून लागू है। अगर ये कहीं मकान लेने जाते हैं तो इनसे जाति धर्म ये सब पूछा जाता है और इन्हें मकान उसके बाद मिलता है। अगर इनकी जाति धर्म समुदाय की बस्ती है वहाँ पर इन्हें मकान मिलते हैं। दूसरा दुख इनका ये है, कॉमनवेल्थ के नाम पर कई गरीब परिवारों का डिमोलेशन होता रहा है और आज भी उसी जो है डिज़ाइन से इस डिमोलेशन को किया गया है जो पिछले दिनों में आपने देखा है। मतलब कि डिमोलेशन के नाम पर गरीबों को ही खदेड़ा जा रहा है और पैसे वाले जो है व्यापारी है, अंबानी है, अदानी है, उन लोगों की जो है सरकार उनका समर्थन करती है। जिन्हें इन्होंने वोट दिए हैं वो कोई नेता इनके तक पहुँचे नहीं है और सरकार जो है इनके इस जो दुख में शामिल नहीं है, कोई नुमाइंदा इनके दुख में शामिल नहीं है और अगर कोई आता है तो उसे डिटेन किया जाता है। सुबह से ही ये डिमोलेशन चल रहा था, सुबह 8 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो गई। यहाँ पर जो है इनका सामान सब कुछ बाहर है, नाश्ता तक इन्हें चाय पानी करने नहीं मिला और सामान लेकर बाहर इन्हें खदेड़ दिया गया। जी, રોજ ફરિયાદ એને જ કરીએ, બીજા કોઈ કરી નહીં। આ ભાજપવાળો માણસ છે ને એને જ અમારે આ ગરીબાને આવી રીતે કર્યું હોય। જો આમાં નાના બાલ બચ્ચા બધા લઈને અમે ક્યાં જઈએ, તમે જ વિચાર કરો। मतलब इन लोगों का अब ये देखिए बस्ती के लोगों का यही भी दुख है, ये दुख है इनका कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कॉरपोरेटर इन लोगों की भी मिली भगत है और इस डिमोलेशन में उनका एक बड़ा रोल रहा है, ऐसा ये गरीब लोगों का मानना है। क्योंकि रामवाड़ी टेकरा जो है इस बस्ती के लोग आसपास के बंगलों को, हवेली वालों को पसंद नहीं थे और इनका कहना यह, इनका दुख ये है, इनके आरोप ये है कि कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्व कॉरपोरेटर है, इन तमाम के कहने के मुताबिक ये हो सकता है और ये उसी
के मुताबिक हुआ है, ऐसा इनका मानना है। अब आने वाले दिनों में इन्हें क्या मिलता है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, ये देखने को रहा। फिलहाल लोग सड़कों पर है, आंख में आंसू लिए, आंखें नम किए हुए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।